Good morning, students. Welcome to you in your class 8th video, science class. Today we will start with chapter 10, force and friction. That is given on page 145. What is force and what is friction? We will study about these concepts in this chapter. In our previous classes we have read that force is either a push or a pull. हमने अपनी पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा है कि फोर्स क्या होता है, या तो कोई पुश है या फिर कोई पुल है, या तो हम उसको धक्का देते हैं किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड एज पुश, और जब हम उसको व्हेन वी लेट इट मूव टुवर्ड्स आवरसेल्फ, हम उसको खींच रहे हैं अपनी तरफ, तो दैट इज ए पुल. Force can make an object move, stop, change its direction or change its shape. Various types of forces such as gravitational force, electrostatic force, magnetic force and frictional force exist in nature. Now we will study by reading. Let's get going. In the previous class we learnt about the concept of time and how motion of an object is understood with the help of time. We also learnt about distance and speed and plotted graphs to understand the relation between distance, speed and time. Let us refresh our memory by answering the following questions. So students, here a picture is given. यहाँ आप देख रहे हो एक पिक्चर है और इस पिक्चर में there are 5 flags 1 2 3 4 5 और एक बॉल है यहाँ और 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये बॉल मूव कर रही है. A ball is rolling on a smooth surface with a speed of 1 meter per second. There are 5 checkered flags placed 2 meter apart. हर फ्लैग के बीच में डिस्टेंस है 2 मीटर्स का, 1 और 2 के बीच में 2 मीटर्स का, सेकेंड और थर्ड एंड लाइक दिस 2 मीटर्स का डिस्टेंस है. Now the question arises, along which flag would the ball be after 2 seconds? दैट मीन्स कि वो 2 सेकेंड के बाद कौन से फ्लैग के पास पहुंचेगी. अब हम जानते हैं यहां से लेके यहां तक इट इज गिवन द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स. यू कैन सी हेयर, है ना. तो फर्स्ट बॉल और फर्स्ट फ्लैग के बीच में कितना डिस्टेंस है 2 मीटर्स का, और स्पीड उसकी कितनी बताई है 1 मीटर पर सेकेंड. दैट मीन्स 1 सेकेंड में वो 1 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, तो 2 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, यस 2 मीटर्स. और फर्स्ट फ्लैग 2 meters away है from the ball, तो the ball will reach after 2 seconds near the first flag. Second question is, how much time would have elapsed when the ball reaches flag 3? Flag 3 पर जब बॉल पहुंचेगी तो उसको कितना टाइम हो चुका होगा. तो थर्ड फ्लैग जो है it is 6 meters apart from the ball, 2 to 4 and to 6 meters. तो 6 meters 1 मीटर में 1 सेकेंड में 1 मीटर है, तो 6 meters it will cover in 6 seconds. So the answer of second question is 6 seconds. What is the distance covered in 8 seconds? 8 seconds में कितना distance cover करेगी? Again the same method, it will be 8 seconds में 8 meters it will cover and it will reach after 8 seconds near the 4th flag. Plot a distance time graph for the above. For plotting the graph between distance and time, we will take along the y-axis distance in meters and we will take time on the x-axis in seconds. Now when we plot 1 meter in 1 second, 2 meters in 2 seconds, 3 meters in 3 seconds, we will see that the graph is a straight line. So the graph for the distance time graph for such situation is a straight. Now page 146, the study of the motion of an object is the effect. What is the cause of motion? In this chapter we will learn about the concept of force, push or pull, and understand that motion is caused by the application of force. Look at the following pictures and observe the various situations involving push or pull. तो हम इस चैप्टर में पुश और पुल कॉन्सेप्ट पर फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे. In this first picture, we can see that the man is pushing a shopping cart. ये push कर रहा है. Push means dragging away from myself. ठीक है, अपने से किसी चीज को दूर की तरफ पुश करना. A girl pulling her mother. Pull means towards itself. जब हम किसी चीज को अपनी तरफ खींचते हैं. A gardener pushing a lawn
more and a boy on a ski being pulled by a cable. एक तार के द्वारा ये पुल किया जा रहा है, एक स्की के ऊपर है ये बॉय है और यहाँ पर ये बोट के साथ बंधा हुआ है और जो एक केबल है ये इसको अपनी बोट की तरफ पुल कर रही है. फोर्स इन सिंपल टर्म्स इज डिफाइंड एज अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट. तो फोर्स को हम सिंपली क्या कह सकते हैं, जब हम किसी चीज को पुश करते हैं मतलब धक्का देते हैं अवे फ्रॉम आवर सेल्फ, और या फिर हम किसी चीज को पुल करते हैं या कि हम वी आर ड्रैगिंग इट टुवर्ड्स आवर सेल्फ, अपनी तरफ खींच रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, दैट सिंपल इज कॉल्ड एज फोर्स. We like playing sports. In many sports, for example football, the ball is kicked and passed on to the another player, or the ball is received from another player and redirected to another player or to the goal. हम कुछ एक गेम्स खेलते हैं लाइक फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, वॉलीबॉल है. इन सब में क्या कर रहे हैं कि एक प्लेयर है वो किक मार के बॉल को दूसरे के पास पास करता है, दूसरा फिर फोर्स लगाता है और उसको डायरेक्शन चेंज करके दूसरे थर्ड प्लेयर के पास करता है. टू डू ऑल दीज चेंजेस इन द मोशन ऑफ द बॉल वी रिक्वायर फोर्स. इस तरह के सभी चेंजेस करने के लिए हमें फोर्स की जरूरत पड़ रही है, चाहे हमें उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, उसकी स्पीड को इंक्रीज करना है या मूविंग बॉल को रोकना है, हर एक में हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है. A player kicking a football in this picture and a player is changing the direction by applying force in this, and a player stopping the football. That means in all the conditions we have to apply force. In all the examples shown above, we can see that the player interacts with the ball and applies a force. That is the cause, thus changing the motion. That is the effect on the ball. Now interacts. What does the word meaning interacts means? बॉल को टच करना पड़ता है, उसके कांटेक्ट में आना पड़ता है प्लेयर को और फिर वो उस पर कोई फोर्स लगाता है. सो द फोर्स इज द कॉज, कि किस कारण से उसके अंदर मोशन चेंज हुई बॉल में. द कॉज इज द फोर्स, कारण. दस चेंजिंग द मोशन. अब क्या इफेक्ट हुआ फोर्स लगाने का? मोशन, उसमें मोशन चेंज हुई. दिस इज द इफेक्ट. We can also observe the action of force and motion it causes in our daily lives. हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे देखते हैं जिसमें हमारा फोर्स चेंज हो रहा है और फोर्स लगाने से बहुत सारी सराउंडिंग्स में मोशन चेंज होती हैं. इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन first of all move an object from its state of rest or increase the speed of a moving object. हम बहुत सारी चीजें जो रुकी हुई हैं, जो रेस्ट में हैं, जो स्टेशनरी हैं, उनकी स्पीड को हम उनको मोशन में ला सकते हैं और उनकी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं. जब वो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी स्पीड कितनी होगी? 0 स्पीड. बट जब हमने उसको मोशन में ला दिया तो उसकी स्पीड 0 से समवट इंक्रीज हो जाती है. और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है तो भी हम उसको और ज्यादा स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स, लाइक इन द गेम ऑफ football etc. I have given the example. For example, by applying a force we can make a stationary ball moving by pushing or kicking it. एक रुकी हुई, stationary means रुकी हुई बॉल को किक करके पुश करके हम उसको मोशन में ला सकते हैं. If we push it harder, the ball will move faster with a greater speed. अगर हम उसको ज्यादा जोर से पुश करेंगे तो वो ज्यादा तेजी से, ज्यादा स्पीड के साथ मूव करना स्टार्ट कर देगी. Second is decrease the speed of a moving object or stop a moving object. For example, by applying a force in a direction opposite to the direction of motion of the moving ball, we can decrease its speed or completely stop it. दैट मीन्स कि फोर्स लगाकर हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जहां पर वो मोशन कर रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट पे, तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट में फोर्स लगाने से वी कैन डिक्रीज इट्स स्पीड. हम उसकी स्पीड को डिक्रीज कर सकते हैं और इवन उसको 0 मीटर पर सेकेंड की स्पीड तक ले आएंगे तो दैट विल बी कंप्लीटली स्टॉप इट. Change the direction of a moving object. The third concept is we can change the direction of the object. For example, in cricket, by applying a force, a batsman hits the ball and directs it to a different direction.
तो गेम खेलते हुए हम देखते ही हैं कि बार बार, चाहे वो कोई भी गेम हो, बार बार फोर्स लगाने पर जो चेंज डायरेक्शन को वो कर सकता है। In our daily life also we can change the direction of any moving object, like we are moving our bicycle, तो फोर्स लगाकर हम बाइसिकल की डायरेक्शन को बार बार चेंज करते हैं अपने रोड पर, and like that. Fourth is change the shape of an object. For example, by applying force with our hands, we change the shape of the dough while making chapatis. चपातीस बनाते हुए आपने मदर को देखा होगा, फोर्स लगाने से वो बार बार उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। While playing also the children with the clay के साथ खेलते हुए आपने देखा होगा बच्चों को, तो they apply force and change the shape repeatedly. Let's investigate. A force is applied on an object. The force causes the speed of the object to increase. What will happen if a greater force is applied to the object? Will the speed of the object be greater? Yes. अगर हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो स्पीड उसकी ज्यादा हो जाएगी। Can there be more than one force acting on the body? Do the forces add up if they are applied in the same direction? Are the forces subtracted when they are applied in the opposite direction? So to understand this concept, yes students, in this concept we will study about the many forces are acting on a single object. You can see here, if we draw a box here, there is a box, and on the box many forces are acting on it simultaneously. When many forces are acting on an object simultaneously means एक साथ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मान लो एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है Fa in this direction, and more of the forces are applied in the same direction by any other source. ठीक है, जैसे घर में एक हैवी बॉक्स होता है तो उसको मूव करने के लिए बहुत सारे फोर्सेस हम सब लोग मिलकर उस बॉक्स को मूव करवाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हम वही वाला एग्जांपल ले रहे हैं कि एक हैवी बॉक्स है एंड वी आर अप्लाइंग फोर्सेस A एंड B इन द सेम डायरेक्शन। अब हो सकता है इधर से कोई पुश कर रहा है और दूसरा एक और आदमी वो सामने से इसको पुल कर रहा है और सेम डायरेक्शन में वो भी फोर्स लगा रहा है FC. So there are three forces, FA, FB and FC. If the forces are applied on a same object, so there are three conditions. The object should be same. Secondly, they are applied many forces simultaneously. जो बहुत सारे forces लगा रहे हैं वो simultaneously means एक साथ लगाए जाएं, तो क्या होगा? These forces are added up. FA plus FB plus FC. This will be equal to the total net force. Net force will be the sum of all the forces applied on an object. ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो फोर्सेस हैं वो ऐड हो जाएंगे, राइट? अब अगर ये फोर्सेस लगाए जा रहे हैं एक ऑब्जेक्ट पर इन द अपोजिट डायरेक्शंस, लेट दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ए हैवी ऑब्जेक्ट इज देयर and some people are moving in this direction, some other is moving in this direction. The forces are applied on the same object but in opposite direction. These are in opposite directions. So what will happen? They will cancel each other and the resultant net force, मान लो ये FA है, ये FB, दो फोर्सेस लगाए जा रहे हैं इन अपोजिट डायरेक्शन, तो सेम ऑब्जेक्ट पर ही लग रहे हैं, साइमल्टेनियसली लग रहे हैं, एक से अधिक फोर्सेस लग रहे हैं, तो नेट फोर्स विल बी द सबट्रैक्शन, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस। दैट मीन्स हम सबट्रैक्ट करेंगे बड़े वाले फोर्स, मान लो कि F1 इज ग्रेटर एंड FB इज स्मॉलर, ठीक है, हम मान लेते हैं कि FA के द्वारा लगाया गया फोर्स ज्यादा है और B जो है वो कम फोर्स लगा पा रहा है, A स्टूडेंट जो है वो स्ट्रॉन्गर है, तो नेट फोर्स विल बी द डिफरेंस ऑफ दीज टू फोर्सेस, दैट मीन्स FA माइनस FB। अब ऑब्जेक्ट क्या मूव करेगा या नहीं करेगा वो इस बात पर डिपेंड करता है, अगर ये फोर्स ज्यादा है
तो द ऑब्जेक्ट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स ग्रेटर फोर्स। जो ग्रेटर फोर्स लगाया जा रहा है उसके द्वारा लगाया गया फोर्स में ही डायरेक्शन में ही ऑब्जेक्ट वो मोशन करेगा। ठीक है, जो स्मॉलर फोर्स लगा रहा है दे बोथ विल कैंसिल ईच अदर, जितना कैंसिल वो कर सकते हैं। लाइक इन मैथमेटिक्स, मान लो ये 5 है, ये 2 है, तो 5 - 2 3 विल बी द आंसर। और ये जो है ये Fa क्योंकि बड़ा फोर्स है तो ये इसी की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। एक और केस भी हो सकता है, मान लो हम कहें कि Fa इज इक्वल टू Fb, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं लेकिन वो इक्वल है, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स जो होगा दैट विल बी Fa माइनस Fb, दैट विल बी इक्वल टू 0। और 0 का मतलब क्या है, द ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। ठीक है, देयर विल बी नो मोशन, नो चेंज ऑन मीन्स अगर वो मोशन में है तो हम कहते हैं जो भी इफेक्ट्स वो शो करता है वो कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेगा। द ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। दिस इज हाउ वी कैन से दैट द फोर्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड और द फोर्सेस कैन बी एडेड इफ दे आर इन द सेम डायरेक्शन। अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो दे विल बी एडेड अप, और अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दे विल बी सब्ट्रैक्टेड। नाउ हियर इन रियल वर्ल्ड ऑल्सो इट इज एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल इज से ऑफ ए गोल्फ बॉल बीइंग हिट बाय अ क्लब। Observe the shape of the golf ball. It is not round or spherical. The shape of the ball has changed due to the application of force by the golf club. यानी कि वो कह रहा है कि गोल्फ क्लब की बार बार हिट करने की वजह से उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है, तो दैट मीन्स द फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्टैक्ट फोर्सेज एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। कॉन्टैक्ट फोर्सेज मीन्स वो फोर्सेज जिनको हमें टच करना पड़ता है फोर्स अप्लाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू ओपन द डोर ऑफ योर रूम, यू वॉन्ट टू ओपन द वार्डरोब। ठीक है, आपको ओपन करना है, आपको इस बुक को खोलना है, बंद करना है, आपको राइट करना है, कुछ भी करना है तो आपको फोर्स अप्लाई करना है, तो उसमें आपको उसको टच करना पड़ेगा। The forces acting between the two objects that require a physical contact between them are called the contact forces। जिसमें हमें किसी ऑब्जेक्ट जिस पर फोर्स लगाया जा रहा है और जो फोर्स लगा रहा है उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में, टच में आना पड़ेगा। टू कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर मस्कुलर फोर्स, हमारी मसल्स के द्वारा लगाए गए फोर्स को कहते हैं मस्कुलर फोर्स, एंड फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, muscular force when an object is pushed, pulled or lifted by the action of muscles। when we are pushing something, जब हम किसी चीज को पुल कर रहे हैं, या लिफ्ट मीन्स उठा रहे हैं, लाइक दिस पर्सन वेट लिफ्टर, ही इज lifting the weight in his hand and he is, here are the muscles, biceps, triceps muscles, they are performing their function while he is lifting the weight। तो इसमें उसको टच करना पड़ेगा, अपने हाथ में उठाना पड़ेगा, तभी वो बॉल ऊपर उठकर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ वेट लिफ्टर लिफ्ट्स द हैवी वेट्स विद द फोर्स अप्लाइड बाय हिज आर्म। नाउ ऑन पेज 148, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल मीन्स वो फोर्स जो मोशन करते हुए फोर्स को अपोज करता है। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पर मूव करता है तो वो सरफेस, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का सरफेस उसको अपोज करता है मोशन करने में। दिस इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल फोर्स। द रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टिव मीन्स अपोज करने वाला फोर्स, अपोजिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट एक्ट्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होते हैं तभी वो फोर्स अप्लाई करेगा। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे टच करते हुए उसके ऊपर मूव कर रहा है, देन दिस frictional force come into action. This is called as the frictional force. We will discuss about frictional force in detail in the later section. It is easier to slide down ice as shown in figure 10.4. Here is a skier and he is sliding down on ice. यहाँ पर वो ice के ऊपर अपनी skis के द्वारा move कर रहा है। तो आपने देखा होगा कि कितना easily वो मूव करता है, बिकॉज द सरफेस ऑफ आई इज हाईली स्मूथ। अब जो आइस है और ये स्कीज हैं ये एक दूसरे के टच में हैं, एंड
जो आइस है वो इसकी की मोशन को अपोज कर रही है। एंड नाउ हियर ए पर्सन हु इज मूविंग ऑन ए ग्रास लॉन के ऊपर ये पर्सन चल रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि अगेन द ग्रास लॉन इज अपोजिंग द मोशन ऑफ दिस पर्सन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, बट फ्रिक्शन कैन बी मोर on some surface and it can be less on smooth surfaces. Ice is smoother than the grass, so ice resists less, it gives less friction और ये बहुत ही आराम से बहुत ही फास्टर स्पीड पे मूव कर रहा है। लेकिन जो ग्रास है वो थोड़ा ज्यादा फ्रिक्शन लगा रहा है, जिस वजह से ये इजीली मूव नहीं कर पाता है। Frictional force always opposes the motion. If friction is less, then the pushing force or applied force will be more. ठीक है? And if the object moves forward, if friction is equal to the pushing force, the object remain at rest. जैसे हमने अभी पढ़ा कि if more than one force is applied on an object, तो अब हम देखेंगे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो एक फ्रिक्शनल फोर्स तो उस पर लग ही रहा है और एक एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं। तो अगर हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो मोर देन फ्रिक्शनल फोर्स है तो ऑब्जेक्ट विल मूव। एंड इफ द फ्रिक्शनल फोर्स इज मोर एंड अवर अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स इज लेस देन द ऑब्जेक्ट विल नॉट बी एबल टू मूव। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार ऐसा होता है कि कोई हैवी बॉक्स है, हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं वो फिर भी नहीं मूव हो रहा है ना। हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट में तो ये कह दिया कि जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगा के जो ऑब्जेक्ट्स है वो मोशन करने लगते हैं, बट समटाइम्स हमने ये भी फील किया है कि हर बार ऐसा नहीं होता। कुछ एक बार एक हैवी बॉक्स पे फोर्स लगाने पे वो मूव नहीं करता, दिस इज ड्यू टू फ्रिक्शन। Next concept is non-contact forces. The forces acting between two objects that do not require any physical contact between them are called non-contact forces. जिसमें हमें force को टच करने की जरूरत नहीं है। The force is not required to touch the object on which the force is going to be applied. For example, gravitational force. Gravitational means the force इट इज अ यूनिवर्सल फोर्स। हर एक ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है। व्हेन ए बॉल इज थ्रोन अप, द ओनली फोर्स दैट मेक्स इट कम डाउन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। Everything pulls everything else in this universe. The force of attraction with which objects pull each other is called the gravitational force. तो हमने ये नोटिस किया है कि जो भी चीज बॉल है या कोई हैंग्ड फ्रूट ऑन अ ट्री, जो भी कोई चीज होती है वो अर्थ की तरफ ही खींची चली आती है। जब भी हम कोई चीज अर्थ के अगेंस्ट भी ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो भी वो अल्टीमेटली अर्थ की तरफ ही नीचे पुल होकर आ जाती है, बिकॉज अर्थ इज पुलिंग इट टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है? अब इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, एवरीथिंग, चाहे वो एक माइक्रोस्कोपिक एटम से लेकर और बड़े से बड़े कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक सन, मून, ऑल द प्लैनेट्स, एवरीथिंग पुल्स एवरीथिंग एल्स। हर एक चीज दूसरी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद विच ऑब्जेक्ट्स पुल ईच अदर, वो फोर्स जिसके द्वारा एक दूसरे को वो एक अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं ऑब्जेक्ट सारी इस यूनिवर्स की, दैट इज कॉल्ड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ स्पेशली वी कॉल्ड इट एज ग्रेविटी। For example, the sun pulls earth and the gravitational force between the sun and the earth make them move. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि this is the sun in the center और सन के चारों तरफ अपने ऑर्बिट के अंदर अर्थ और ऐसे सभी दूसरे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। अब आपने कभी नोटिस किया कि ऐसे ये कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं अर्थ के चारों, सन के चारों तरफ सभी प्लैनेट्स या स्पेशली अर्थ? हाउ डू दे रिवॉल्व? विच इज द फोर्स जो इनको ऐसा करने के लिए कर रहा है, फोर्स कर रहा है? वो कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से ये ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं और कहीं गिरते भी नहीं है, कहीं जाकर चिपकते भी नहीं है, टकराते भी नहीं है और अपने पाथ से
हटते भी नहीं है, ठीक है. दे डोंट मूव अवे फ्रॉम देयर पाथ, दे मूव इन अ फिक्स्ड पाथ. हाउ डज इट हैपन? दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स विच मेक्स देम मूव इन अ पर्टिकुलर डेफिनेट पाथ अराउंड द सन. There are some activities by which we can see that they are proving friction here, and we can say that now अब सन और अर्थ के बीच में यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, यहाँ ये they are not in contact with each other, ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, फिर भी फोर्स लगा रहे हैं. तो this is the force called as the non-contact force. Is there any gravitational force between a chair and a table? Yes, of course. जब सभी चीजों के बीच में gravitational पुल अट्रैक्शन है तो एक चेयर और टेबल जो हमारे घर में रखा है उसमें भी है. इफ सो व्हाई डू द टेबल एंड द चेयर नॉट मूव टुवर्ड्स ईच अदर? अगर उन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई डोंट दे गेट स्टिक टू ईच अदर? एक दूसरे की तरफ मूव करते हुए हमें दिखाई नहीं देते. व्हाई? इट इज because the gravitational force depends upon the mass, and the mass of the objects table and chair are very less as compared to the gravitational force of attraction which is required to that the substances move towards each other. ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि प्लैनेट्स के बारे में, प्लैनेट्स दे हैव अ लार्ज मास, बहुत ह्यूज मास होता है. एज कंपेयर टू दैट table, chair, they have very small masses, and so they attract each other but they don't appear to move towards each other. Next is electrostatic force. Electro, it is by name showing the two words. Electro means electrons and static means which are not moving. The electrons which do not move, वो ऑब्जेक्ट के अंदर ही रहते हैं. कुछ इलेक्ट्रॉन्स जिनकी वजह से कुछ फोर्स क्रिएट हो जाता है ऑब्जेक्ट्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज ऑब्जेक्ट on another charged or an uncharged object is known as electrostatic force. Contact between the objects is not required. Therefore, electrostatic force is another example of a non-contact force. Now, electrostatic forces जो हैं, they are developed in the object by the rubbing of objects with each other. For example, we take a glass rod and rub it with a silk cloth. When we rub them, then some of the electrons they move from the glass rod to the silk cloth. We know that all things are made up of atoms, or atoms contain electrons in them. These electrons move from one object to another object when they are rubbed against each other. अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स जब ग्लास रॉड में से निकल जाएंगे तो इट विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज, और इस सिल्क क्लॉथ ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए. सो बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट विल एक्वायर सम नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब अपोजिट चार्जेस attract each other and they will start attracting each other. So there are two types of electrostatic forces, charges. Forces are developed due to two type of charges on them, positive and negative charge. Opposite charges, if opposite charges are bring closer to each other, then they start attracting each other from a distance. मतलब दूर से ही दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे. इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल कि उन दोनों को टच करवाया जाए और वो तभी एक्ट करेंगे. सिमिलरली, if the same charges are brought closer to each other, then they will start repelling each other. For example, हम किसी positively charged दो objects को पास लाते हैं तो वो रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे, और अगर हम नेगेटिव को क्लोजर लाते हैं तो वो भी रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे. Got it? So similar charges repel each other and opposite charges they attract each other. You can have a activity also. एक
प्लास्टिक का स्केल लेकर हम उसको अपने ड्राई हेयर पर रब करेंगे, तो रब करने से इट विल कैरी सम चार्ज ऑन इट। अब आप छोटी छोटी पेपर बिट्स को उस स्केल के पास लेके जाएंगे, तो विदाउट टचिंग देम, on coming closer to the paper bits, the scale will start attracting the paper bits। छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को वो प्लास्टिक का स्केल अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो these are some examples of electrostatic force like a balloon। एक बैलून को आपने अपने शर्ट पर रब किया और फिर आप उसको दीवार के साथ आसानी से चिपका सकते हो। हाउ डज इट हैपन कि बैलून को रबिंग करने के बाद बैलून पर तो चार्ज आ गया, डेवलप हो गया, लेकिन वॉल पर तो कोई चार्ज नहीं था, उसको हमने किसी के साथ रब भी नहीं किया, बट स्टिल इट गॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट वॉल। इट मीन्स टू objects having charge on them, that means opposite charge, then they get attract. And in the second case, if one object is charged but the another object is not charged, even in that condition also the electrostatic force will develop in between these two objects. So here we can see positive positive, they are repelling, negative negative, they are repelling। repel means moving away from each other, एक दूसरे को push करना और एक दूसरे से दूर जाना। But opposite charge is positive and negative, they are attracting each other, that means coming closer with each other। There are two types of charges, positive and negative. The force between them can either be attractive or repulsive, unlike the attractive gravitational force। अब यहाँ पर एक difference है, gravitational force always attract the other objects, ठीक है। gravitational force is only attractive in nature, वो कभी भी repel नहीं करेगा। कभी आपने देखा है कि बॉल अपने आप अर्थ से उठकर उड़ रही हो? अपने आप नहीं होता ना। हाँ, कोई पेपर भी अगर उड़ रहा है तो दैट इज ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड बाय एयर। कुछ हवा का झोंका आया और चीज उड़ गई तो इट्स ओके, वहां पे एयर फोर्स लगा रही है। बट कोई भी चीज अर्थ से रिपेल होकर दूर नहीं जाती, इट इज ओनली अ अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक कैन बी अट्रैक्टिव और कैन बी रिपेलिंग, दोनों डायरेक्शंस में ये मूव कर सकता है ऑब्जेक्ट को। Two positive charges or two negative charges will repel each other, but a negative charge and a positive charge will attract each other. In other words, like charges repel each other and unlike charges attract each other. Electrostatic is the branch of physics that deals with electric charges and the forces between them। तो आगे चल के आप देखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एक पूरी ब्रांच है फिजिक्स की, जिसमें हम चार्जेस के ऊपर डिपेंडेंट बहुत सारी एक्टिविटीज को स्टडी करते हैं। Now here is the activity given, what I have told you that you can rub a plastic scale and attract the paper bits। Here is some activity which shows that electrostatic force is a non-contact force। दो यहाँ पर हम दो बैलून्स ले रहे हैं और बैलून्स को एक धागे के साथ बांधकर with a thread, tied up with a thread, two balloons are there tied up with thread and they are hanged together। उनको हम पास पास लाकर बिना टच किए, मीन्स देयर शुड बी अ स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम, और हमने यहाँ हैंग कर दिया। अब हम देखेंगे कि वो बिल्कुल सीधे इक्वल डिस्टेंसेस पर हैंग्ड है। फिर हमने क्या करा, उन दोनों को रब कर दिया। अब रब करने से दोनों के ऊपर सिमिलर चार्ज डेवलप हो गया and now they are repelling each other and moving away from each other। The third type of force is magnetic force। The force exerted between two magnets or between a magnet and a magnetic material such as iron, nickel and cobalt। You should underline these words, iron, nickel and cobalt। These are the basically three main things, materials which are attracted by magnets। These are called as magnetic forces। जब दो मैग्नेट्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, या ये स्पेसिफाइड मटेरियल, इनको हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, एंड दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट, देन इट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्स। आपने नोटिस किया होगा समटाइम्स कि कुछ आयरन की चीजें, आयरन नेल और समथिंग एल्स, दे आर गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट, मैग्नेट के साथ आकर चिपक जाते हैं।
उसके लिए हमें उसको टच नहीं करवाना पड़ता, दूर से ही मैग्नेट उनको अपने फील्ड की, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली दूर से ही वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है। इन ए मैग्नेट देयर आर टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. Just like charges in electrostatics, like poles of a magnet repel each other and unlike poles attract each other. The magnetic force that acts between bar magnets is a non-contact force. Here we can see there are two magnets given. ये magnet के poles हैं north and south. North there is another bar magnet and the same poles of two bar magnets when come closer to each other they repel each other. Both are moving in opposite direction to each other. Both are then south poles are brought closer, again they are repelling each other. But if the opposite poles, south of this and north of this and south of this pole magnet, when they are brought closer to each other, then they start attracting each. So overall we can say non-contacted forces are of three types: gravitational force, electrostatic force, and third is the magnetic force, in which the same poles on coming closer repel each other and opposite poles on coming closer they attract each other. Now we will move to page 150 and in detail we will study the concept of friction. Friction is a type of contact force. We already have some idea of friction. In this section we will learn in detail about the frictional force, its causes, types and advantages and disadvantages in daily life. What causes friction? Frictional force is caused due to the opposition by the irregularities of the two surfaces in contact. These irregularities interlock with each other and opposes the motion when the external force is applied. If the force of contact is rough, friction is more, and if the surfaces of contact is smooth, then the friction is less. Now we will see what is friction and what is the cause of friction. For example, this is an object A और इस A ऑब्जेक्ट जो है वो इसका सरफेस B ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा हुआ है और A और B के सरफेसेस जो हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं. We apply some external force on an object A to move. जब A ऑब्जेक्ट पर कुछ फोर्स लगाया जा रहा है कि वो मूव करे, तो B ऑब्जेक्ट उसके मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगा. ठीक है, अब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्यों लग रहा है? What is the cause? The cause behind this are the irregularities. ये सरफेस देखने में तो हमें स्मूथ लग रहे हैं, but there are some irregularities in these surfaces. These surfaces are not smooth like this. ये बिल्कुल प्लेन नहीं है. When we see them under the microscope, we will see there are some irregularities in them, and these irregularities are present on both the surfaces. When the object tries to move on the other surface, then these irregularities they get interlocked with each other. ये एक दूसरे के अंदर इस तरीके से फंस जाती हैं, इंटरलॉक हो जाती हैं, जिनको तोड़ने के लिए हमें उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है टू ओवरकम दीज इंटरलॉकिंग्स. और यही इंटरलॉकिंग्स होती हैं जो फ्रिक्शन डेवलप करती हैं और हमारा ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करती हैं. इफ द सरफेस इज स्मूथ, जितना ज्यादा ये रफनेस कम होगी, इरेगुलरिटीज कम होंगी, सरफेस जितना ज्यादा स्मूथ होगा, मोर द स्मूदर सरफेस लेस विल बी द फ्रिक्शन, उतना ही फ्रिक्शन भी कम होगा. और जितनी इरेगुलरिटीज ज्यादा होंगी, जितना सरफेस ज्यादा रफ होगा, द फ्रिक्शन विल बी मोर ड्यू टू द इंटरलॉकिंग्स विल बी मोर. नाउ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स इन कॉन्टैक्ट. Frictional force appears only when an external force is applied on the object. If the object is at rest, there is no frictional force. अगर कोई object rest में है तो वो कोई भी frictional force, opposing force apply नहीं करेगा. Frictional force acts opposite to the direction of the applied force. So now we will study about types of friction. There are two types of friction: static friction and kinetic friction. Static word means रुका हुआ, stationary. When the friction is there,
when the object is at rest, then it is called as static friction. And kinetic friction means when the object is moving, when the object is in motion, then the friction acting is called as the kinetic friction. Static means रुका हुआ and kinetic means motion. When the object is at rest, that is when no external force is applied on the object, there is no frictional force. जब तक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा, जबकि वो रेस्ट पोजीशन में है, then the force then there is no frictional force acting on it. When we try to push an object by applying an external force, it may not move. This is when the two surfaces in contact move against each other and the irregularities between the surfaces cause an opposition to the motion of the object. This equalizing opposition force acting against the external force and preventing motion is known as the static frictional force. हमने पढ़ा कि जब ऑब्जेक्ट टोटली मोशन में है तो उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, लेकिन जब वो रेस्ट में है तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा. लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि वी आर अप्लाइंग फोर्स, हम फोर्स लगा रहे हैं, बट स्टिल द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, फिर भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, लाइक इन अ हैवी बॉक्स. इट इज ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ दीज इरेगुलरिटीज. तो फिर जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो कहाँ जा रहा है? इट इज यूज टू ओवरकम द इरेगुलरिटीज बिटवीन द सर्फेसेस. जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो इन इरेगुलरिटीज को ब्रेक डाउन करने में, तोड़ने में यूज हो रहा है. तो जब तक वो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट अभी भी स्टिल इट इज इन रेस्ट, वो अभी भी रेस्ट में है, वो मोशन में नहीं आ रहा है, क्योंकि जितना फोर्स हम लगा रहे हैं उतना ही इक्वल फोर्स वो ऑब्जेक्ट की इंटरलॉकिंग्स लगा रही हैं अपोज करने के लिए. सो द एक्सटर्नल फोर्स एंड द प्रिवेंटिंग मोशन फोर्स, हम उसको ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जो इरेगुलरिटीज हैं वो उसको अपोज कर रही हैं, वो अपना फोर्स लगा रही हैं. व्हेन बोथ दीज फोर्सेस आर इक्वल, देन द बॉडी विल स्टिल रिमेन इन रेस्ट बिकॉज बोथ आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन and they are cancelling each other. Equal and opposite forces cancel each other. Got it? तो हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन वो ऑब्जेक्ट का सरफेस जो है, नीचे वाले ऑब्जेक्ट का सरफेस, वो फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है. दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे को इक्वल होने की वजह से कैंसिल कर रहे हैं. तो सारा का सारा जो हमारे द्वारा एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है वो इन इरेगुलरिटीज की इंटरलॉकिंग्स को तोड़ने में, ओवरकम करने के लिए यूज हो जाता है. बट द स्टिल द बॉडी इज नॉट इन मोशन, देन इट इज कॉल्ड एज द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स. However, if the applied external force is increased further, अब हमने और ज्यादा फोर्स लगाया, then at one point the external force becomes greater than the opposing frictional force. Here the external applied force is able to overcome the opposition caused by the interlocking of the irregularities between the surfaces of contact. तो हमने जितना फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर लगाया वो हमारा ज्यादा हो गया और जो अपोजिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था वो कम रह गया. तो एट दिस पॉइंट द ऑब्जेक्ट बिगिंस टू मूव फॉरवर्ड. तब वो ऑब्जेक्ट जो है आगे की पोजीशन, आगे की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा, जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है, विच इज मोर देन द फ्रिक्शनल फोर्स. This maximum static frictional force between two surfaces in contact beyond which the object starts moving over the other surface is called the limiting frictional force. Limiting frictional force क्या होता है? जब हम फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स, बट द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग और वो surfaces of the object they are interlocked together and they are opposing the motion. तो वो मैक्सिमम फोर्स जितना वो अपोज कर सकता है और जिसके बाद अगर हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग. तो वो मैक्सिमम फोर्स जितना उसने अपोज किया मोशन में ना आने के लिए कि बॉडी स्टैटिक रहे, ना चल पाए, वो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड एज द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स. And beyond the limiting frictional force, the object will start moving.
The frictional force continues to act against the external force, however, it is not greater than the externally applied force. अब क्या, जब ऑब्जेक्ट एक बार मोशन में आ जाएगा तो क्या फ्रिक्शनल फोर्स लगना बंद हो जाएगा? नो, फ्रिक्शनल फोर्स विल कॉन्टिन्यू, वो अपोज करता ही रहेगा टिल द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. जब तक ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा फ्रिक्शनल फोर्स उसको अपोज, मोशन को अपोज करता ही रहेगा. बट लेकिन हमारे जो एक्सटर्नल फोर्स हमारे द्वारा लगाया जा रहा है ऑब्जेक्ट पे, दैट इज मोर. वो अगर ज्यादा रहेगा देन द बॉडी विल कॉन्टिन्यू इन मोशन. मोर देन, it should be more than the frictional force. If the frictional force will become greater, then the object will stop. And if the external force will become greater, then the object will remain in motion. But in all the conditions, the frictional force will remain in action. This opposing frictional force which acts when the object is moving is called the kinetic frictional force. हम उस पे फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट मोशन में है, बट स्टिल उसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जो उस मोशन को अपोज कर रहा है. दैट फ्रिक्शनल फोर्स विच एक्ट्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तब जो अपोज करने वाला फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स. Now kinetic frictional force is also of two types, sliding friction and rolling friction. Sliding friction is the frictional force acting between two flat surfaces when one object slides over another surface. Now there are two flat surfaces. Here the surface of contact is more, therefore the frictional force is more. जब दो flat surfaces contact में आ रहे हैं तो sliding friction जो है वो action में होगा. But the rolling friction is the frictional force acting between two surfaces when one object rolls over another object or a flat surface. Here the surface of contact between the two objects is less and therefore the frictional force is less. Now in this picture, in this figure, we can see this is a flat surface of the sliding chair and this is the flat surface of the road or the ice on which it is sliding. Now both are in contact with each other and the area of contact is more here, so the sliding friction is more. But in this case there is a rolling object, there is a spherical object which can roll over this flat surface. One of the surface is flat, no doubt, like a road. Road is always flat, but our wheel, moving our bicycle wheel or any wheel of the vehicle moving on the road, it is round in shape. Now the area of contact between the road and the ball or the wheel is less. So the area is less, so the frictional force is also less. So we can say that sliding friction, kinetic friction can be of two types. So this is a flow chart of friction. Friction is of two types, static friction which is at rest and kinetic friction when the object is in motion. Kinetic friction can further be of two types, sliding friction and rolling friction. Now if we compare all these three, static, sliding and rolling, then the static friction is maximum and then is the sliding friction. Static friction is maximum, then the sliding friction, and sliding friction is more than the rolling friction. So the object, if it is in spherical or circular shape, then it will have the minimum friction. जैसे कि आपकी साइकिल जब रुकी होती है, यू मस्ट हैव सीन अ रिक्शा पुलर, जब वो स्टार्ट करता है रिक्शा, जब आप स्टार्ट करते हो अपनी साइकिल चलानी, तो यू हैव टू अप्लाई अ लार्जर फोर्स, है ना. तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर टू ओवरकम द इरेगुलरिटीज विच हैव बीन इंटरलॉक्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. जब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में पड़ा है तो काफ़ी देर से इंटरलॉकिंग्स पड़ी हैं, उनको ओवरकम करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज मैक्सिमम फ्रिक्शन. नाउ एक बार जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है, देन इट्स कीप ऑन मोशन, तो वो मोशन में ही रहता है, देन द काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस and static friction is more. If we compare sliding and rolling, then sliding friction is more and rolling friction is less.
So here we can see on page 152 that rolling friction is always less than the sliding friction. That is why it is easier to roll objects to slide them. This is also the reason why wheels were invented, to reduce friction. Nowadays we see trolleys and even school bags having wheels. आजकल आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बैग्स में, सूटकेसेस में, ट्रॉलीज में व्हील्स लगा दिए जाते हैं ताकि वो रोलिंग फ्रिक्शन, बिकॉज वी नो दैट इट इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. तो एक बैग को स्लाइड करने की बजाय, एक ट्रॉली को स्लाइड करने की बजाय उसको रोल करना व्हील्स के द्वारा, उसकी मोशन में हमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है एंड इट इज मोर कंफर्टेबल. नाउ वी कैन स्टडी अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. क्या फ्रिक्शन के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ फायदे हैं? यस, ऑफ कोर्स. इफ वी आर एबल टू वॉक ऑन द ग्राउंड, होल्ड ऑब्जेक्ट्स एंड फिक्स अ नेल ऑन द वॉल, दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन अगर ना हो तो दो चीजें इंटरलॉक कभी नहीं होंगे, दो सर्फेसेस इंटरलॉक नहीं होंगे. एंड इफ दे डोंट गेट इंटरलॉक्ड, देन नथिंग कुड बी होल्ड बाय एनी अदर ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट किसी को पकड़कर नहीं रख सकेगा. इफ देयर वर नो फ्रिक्शन, वी वुड स्लिप ऑन द फ्लोर वाइल वॉकिंग. हम मूव करेंगे तो स्लिप हो जाएंगे अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो, बिकॉज हमारे पाँव के और हमारी या फिर सोल ऑफ द शू एंड अर्थ, दे मेक इंटरलॉकिंग्स विद ईच अदर विच कीप अस इन मोशन एंड इन रेस्ट ऑल्सो. अदरवाइज वी वुड हैव गॉट स्लिप डाउन. would not be able to hold a pencil. हमने ये पेंसिल को हैंड में पकड़ा हुआ है. इट इज ऑल्सो ड्यू टू फ्रिक्शन. हमारे हैंड के सरफेस और पेन या पेंसिल के सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग्स क्रिएट हो जाती हैं. अगर ये फ्रिक्शन ना होता तो वी कुड नॉट हैव फिक्स अ नेल ऑन द वॉल ऑल्सो. वॉल भी होल्ड कर रही है एक नेल को, एक कील को. दैट इज ऑल्सो ड्यू टू फ्रिक्शन. सो फ्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड. ऑल मशीन्स हैविंग गियर्स, पुलीज एंड रोलर्स रिक्वायर फ्रिक्शन to work. Without friction, one part of the machine will not be able to move over another part of the machine. Brakes in all vehicles work on friction. Now this is the picture of a bicycle, and there are brakes in these wires. We apply brakes from here, and there are little part which or due to friction it moves on the surface of the wheel. It comes in contact with the surface of the wheel and it stops it from moving. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो एक बार हमारी साइकिल चलनी स्टार्ट होती है, एनी व्हीकल, तो इट वुड नॉट हैव स्टॉप्ड. वो हमेशा के लिए चलता ही रहता, जिससे एक्सीडेंट्स वगैरह होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं अगर फ्रिक्शन कम होता है तो. सो दीज आर द थिंग्स वेयर वी रिक्वायर. Does friction have any advantage? All machines have friction. Due to this friction, the machine parts heat up and lose energy. This brings down the efficiency of machine. अब हमने पढ़ा कि टायर चल रहा है रोड पर किसी भी व्हीकल का तो फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है. बट इट हैज मैनी डिसएडवांटेजेस ऑल्सो. लाइक जब भी कोई मशीनरी पार्ट्स मूव करते हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शन दे get heat up. Like in winters, sometimes you have seen when you are feeling very cold, then you start rubbing your hands. हम अपने hands को rub करते हैं जिससे कि heat produce होती है. This heat is produced due to friction in between the surfaces of two hands. In the same way, whenever two parts come in contact with each other and they start moving on with one another contact, then these parts get heat up. तो मशीन के पार्ट्स अगर हीट अप हो जाएंगे तो दे विल स्टार्ट लूजिंग एनर्जी एंड दिस विल ब्रिंग्स डाउन द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, जिससे कि मशीन की वर्किंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी. बिकॉज उसकी बहुत सारी एनर्जी जो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वो उस हीट में कन्वर्ट होकर वेस्ट हो जाएगी. फ्रिक्शन ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट वियर एंड टियर इन द मशीन पार्ट्स. जब दो पार्ट्स आपस में रबिंग होंगे फ्रिक्शन की वजह से और फ्रिक्शन वहां पर वर्क कर रहा है तो दे विल स्टार्ट डैमेजिंग द सर्फेसेस ऑफ विच आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. दैट इज कॉल्ड एज वियर एंड टियर, टूट फूट होना. लाइक द soles of our shoes, our footwear, they get worn out. वो घिस जाते हैं. They get worn out due to friction. समय के साथ साथ ज़्यादा चलने पर वो घिस जाते हैं. इसी तरह से सिमिलरली इन टायर्स ऑफ द व्हीकल्स ऑल्सो दे ऑल्सो गेट worn out and we have to replace them, which becomes very costly.
They have to be constantly replaced to make them run smoothly. Tires of vehicles have grooves to provide better grip on the road. However, they get worn out due to friction. Tires have to be replaced if they get worn out. Friction has both advantages and disadvantages. That is why friction is called a necessary evil. In this picture we can see that there is a worn out tire. ये घिस चुका है टायर, इसलिए हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, अदरवाइज ये फ्रिक्शन कम हो जाएगा ना, स्मूथ सरफेस हो गया तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा, जिससे रोड पर ये स्लिप हो सकता है एंड इट कैन कॉज एक्सीडेंट्स ऑल्सो. सो टाइम टू टाइम वी हैव टू चेंज द रिप्लेस द टायर्स विद न्यू टायर्स सो दैट दे कैन मेक more grip on the surface of the roads. So we have seen that it has advantages as well as disadvantages. So it is a necessary evil. Necessary means ये important भी है, जरूरी भी है, और evil means ये एक बुराई भी है. So methods to minimize friction. How can we reduce friction? Friction cannot be eliminated. So it should be remembered always कि हम फ्रिक्शन को कभी भी जीरो नहीं कर सकते, बिल्कुल से खत्म नहीं कर सकते. However, it can be minimized. Following are the various methods by which friction can be minimized. First is friction can be reduced by applying lubricants such as oil or grease between the moving parts of a machinery. Now you can see in this picture, this person is applying some lubricant. ये जो spray कर रहा है, this is a lubricant which is applied in the brake so that they can run smoothly. अब जो friction है वो किस कारण से हो रहा है? We know that it is due to interlockings. अब ये जो interlockings है, अगर ये बहुत ज़्यादा interlockings डीप हो जाएंगे तो इट विल कॉज मोर ऑफ द फ्रिक्शन एंड देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी. सो टू रिड्यूस फ्रिक्शन वी कैन फिल these interlockings with some oil or grease or some lubricant so that now the gaps are filled. अब जब एक बार gaps ये fill हो जाएंगे तो ये आपस में बिल्कुल surface जो है वो contact में आएगा, वो almost plain हो जाएगा and it will smoothen the surface, और smooth होकर the friction will be reduced and they will move in a smooth manner. Second is friction can be reduced by smoothing the two surfaces in contact. अगर हम दो surfaces को smooth कर दें, like by rubbing with some other material, हम उस surface, अगर वो ज़्यादा rough surface है तो हम उसको smooth में convert कर सकते हैं. Smoothing reduces the roughness and reduces the interlocking between the irregularities of two surfaces in contact, thereby reducing the friction. Like by polishing, by painting, हम उन grooves को अगर भर देंगे तो वो smooth हो जाएगा and it will reduces the friction. If there are rotating parts in the machine, they can be connected using ball bearings. अगर दो surfaces ऐसे हैं machine में जो rotate कर रहे हैं एक दूसरे के surface के ऊपर, then we can use such type of circular parts which are called as ball bearings. We know that the rolling friction is less, so ball bearings will help in reducing the friction. Ball bearings help in reducing friction as the relative motion between two surfaces sliding over each other is converted to rolling motion. ठीक है? This reduces the friction between two surfaces in contact because, as we know, rolling friction is less than the sliding friction. Now on page 154, there is one more method to reduce friction due to air resistance or resistance when an object moves in a liquid in streamlining the shape of the object. We know that the air and the water, means liquids, they also exert resistance or friction to the moving object. जब कोई object air में या पानी में move कर रहा है, like we are swimming in water, और वी आर साइकिलिंग, तो जब भी हम चलते हैं या साइकिल चलाते हैं तो एयर का प्रेशर हमारे ऊपर लगता है. वी कैन फील दिस प्रेशर व्हेन द एयर इज ब्लोइंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू अवर मोशन. तो हमें फील होता है कि हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है उसको ओवरकम करने के लिए. तो ये जब एयर कम है तो भी फ्रिक्शन तो वो अप्लाई कर ही रही है. सो द फ्रिक्शन अप्लाइड बाय फ्लूइड्स, है ना, विच कैन फ्लो, मीन्स एयर और लिक्विड जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ड्रैग फोर्स. द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय फ्लूइड, एयर और लिक्विड against the motion of an object is known as drag force. Streamlining is to shape the object in such a way that it
presents very little resistance, drag force while moving through air or liquid, thereby increasing its speed. अब हम इस फ्रिक्शन को जो एयर या वाटर के द्वारा लगाया गया फ्रिक्शन है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. वी कैन सी हियर there can be a shape which is flat in surface. This is a flat surface in front. और इसमें जो एयर या वाटर फ्रिक्शन लगा रहे हैं that is the area of contact is more, so friction will be more. But we can reduce this friction by streamlining the shape. अगर हम इस shape को reduce कर दें like this, we have reduced the surface by streamlining the shape. Streamlining means pointed in front and broad at the back. वो surfaces जो आगे से pointed होते हैं और पीछे से broad होते हैं. अब इससे क्या होगा कि जो surface area in contact with air will be reduced. अब ये सिर्फ इतना ही contact में आ रहा है, तो surface area जब reduce हो जाएगा तो friction will also be reduced. So we can reduce the friction by fluids, that means drag by streamlining the body, the object that is moving in air, like fish. The shape of fish is also streamlined. So this is the drag, this is the resistance force applied by air or water, both have the same case. तो अगर ये सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा फ्रिक्शन अप्लाई करेगा ड्रैग. लेकिन इफ़ वी रिड्यूस द एरिया बाय स्ट्रीमलाइनिंग द शेप, द फ्रिक्शन विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड. सो इट कैन बी डन इन एयरक्राफ्ट्स, एरोप्लेन्स. वी हैव सीन दैट द एरोप्लेन्स हैव द शेप पॉइंटेड इन फ्रंट, एंड इन द शिप्स, बोट्स ऑल्सो जो पानी में मूव करती हैं, दे ऑल्सो हैव अ स्ट्रीमलाइंड शेप. तो बाय नेचर ने भी फिशेस को एक स्ट्रीमलाइंड शेप प्रोवाइड किया सो दैट दे कैन बी अडॉप्टेड इन मूव इन वाटर. सो दिस इज द एरोफॉइल, द शेप ऑफ एयरक्राफ्ट विंग. इट मिनिमाइजेस ड्रैग, ये ड्रैग को कम कर देता है. दीज आर द विंग्स ऑफ द एयरक्राफ्ट. नाउ स्फेरिकल शेप, अगर ये शेप हमारी स्फेरिकल होगी तो भी स्ट्रीमलाइन से ज्यादा होगी बट फ्लैट सरफेस से कम होगी. ठीक है, तो राउंड ऑब्जेक्ट सच एज बेसबॉल एक्सपीरियंसेस मीडियम अमाउंट ऑफ ड्रैग, तो इट विल बी इन मीडियम बिटवीन द स्ट्रीमलाइन एंड फ्लैट सर्फेसेस. हियर द सर्फेस, इफ द सर्फेस इज फ्लैट और स्क्वेयर शेप, तो फ्लैट एज ऑब्जेक्ट सच एज बॉक्सेस एक्सपीरियंसेस अ हाई अमाउंट ऑफ ड्रैग. नाउ हाउ कैन वी इंक्रीज फ्रिक्शन, बिकॉज हमने ये भी बोला कि फ्रिक्शन इज एन एडवांटेज, तो समटाइम्स यू वांट टू इंक्रीज द फ्रिक्शन. Sometimes it is necessary to increase friction between surfaces. Following are some ways to increase friction. First is increasing the roughness of the surfaces in contact. अब जहाँ पर हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन बढ़ाया जाए, इंक्रीज किया जाए, तो हम जानते हैं कि रफर द सरफेस, जितना ज़्यादा रफ होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, उतनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ की वजह से इंटरलॉकिंग ज़्यादा होंगी. So as the surface becomes rougher, the irregularities of the two surfaces in contact increases, thereby increasing the friction. This is done in the tires of the vehicles. They are grooved, and spikes of the shoes of the sports person so that they can make more grip on the ground while playing. And in case of our footwear also, कि जब हमारे फुटवियर पुराने हो जाते हैं ड्यू टू वियर एंड टीयर, वो घिस जाते हैं, देन दे स्टार्ट स्लिपिंग एंड वी रिप्लेस इट विद सम ग्रूव्ड न्यू फुटवियर जिनमें ग्रूव्स ज़्यादा हों, तो उनके स्लिप होने के चांसेस विल बी रिड्यूस्ड. एंड वी कैन स्लिप डाउन व्हेन वी बाय मिस्टेक कीप आवर फुट ऑन द बनाना पील, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू रिडक्शन इन फ्रिक्शन. और कई बार पानी गिरा हो और बहुत ही स्मूथ सरफेस हो फ्लोर का, पानी गिरा उस पे, तो वी कैन गेट स्लिप डाउन इवन आफ्टर अ रेनफॉल. तो देर आर चांसेस ऑफ मोर स्लिपिंग. दिस इज व्हेन द फ्रिक्शन इज रिड्यूस. सो वी शुड इंक्रीज द रफनेस हेयर. Second is increasing the weight of the object. The more is the weight of the object, the more will be the friction. As the weight of the object increases, the object further presses down onto the surface. Therefore, the irregularities get interlocked more and friction is increased. तो जितना ज़्यादा वेट होगा उतनी ज़्यादा उनके इंटरलॉकिंग्स जो हैं वो आपस में
जो इरेगुलरिटीज हैं वो आपस में ज़्यादा इंटरलॉक हो जाएंगी, ज़्यादा एक दूसरे के अंदर फिक्स हो जाएंगी, एंड वी विल हैव टू अप्लाई मोर ऑफ द force to overcome the friction. So increase in weight of the object is also a method to increase the friction. So this is all about our chapter force and friction. So students, have a nice day.